स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोएम 4 आपकी बुक का इसे रिवाइज करेंगे। और रिविजन सेशन शुरू करने से पहले आई रिमाइंड यू दैट इफ यू वांट टू improve your score in English, please subscribe to the courses that we have prepared exclusively covering your literature and grammar sections. So let us start with today's session. How to Tell Wild Animals is a very unique poem because हमारी जो poet हैं Caroline Wells, she tells us about very distinctive characters of wild animals and how they differ from domestic animals. The poem is a kind of a joke because जिस तरह से वो तरीके बताती हैं how we can distinguish wild animals, they highlight the untamed, independent spirit of the animals, their natural habitats, and these wild animals are so ferocious that the poet says that if you find that the animal is eating you or it is attacking you, then you can say that yes, this is so and so animal. So this is not practical, not doable, and it is just kind of a joke in which he tells about the qualities of those wild animals. So let us read the poem and discuss it. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should be to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. So here she says कि अगर by chance आप कभी ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के जंगल्स में जाओ और वहां पर अगर आपकी तरफ एक बहुत ही बड़ा टॉन कलर का, टैन कलर का जो होता है, येलोइश कलर, येलोइश ब्राउन कलर का जानवर अगर आपकी तरफ आए और वो आपको देखकर ऐसे जोर से रोर करे और उसके रोर सुनकर ही आपको लगे कि आप मर जाओगे, तो आप पहचान सकते हो कि वो जो बीस्ट है वो है एशियन लायन. Now we see the next stanza. Which animal is she talking about? Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you. Mind it, noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground. Just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern means to identify. So here she says कि अगर कभी इधर उधर घूमते हुए एक बहुत ही नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक बहुत ही शरीफ जंगली जानवर आपको ग्रीट करता है जिसकी येलो कलर की बॉडी है और उसके ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, तो आप ध्यान रखना अगर वो आपको खा जाएगा तो ये एक बहुत ही सिंपल रूल है आइडेंटिफाई करने का कि वो जानवर बंगाल टाइगर है. अब देखिए, जब कोई जानवर आपको खा ही जाएगा तो उसे आइडेंटिफाई करने की कोई सेंस ही नहीं बनती क्योंकि आप अब जिंदा ही नहीं हो. Then she says, if strolling forth a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. अब वो कहती है अगर आगे की तरफ चलते हुए आप एक बीस्ट को देखते हैं जिसकी हाइड मीन्स द स्किन, जिसके स्किन स्पॉट्स से पेपर्ड है. पेपर्ड मीन्स उसकी स्किन के ऊपर स्पॉट्स बिखरे हुए हैं, तो जैसे ही वो आप पर अटैक करेगा आप कह सकते हो कि वो बीस्ट एक लेपर्ड है. और दर्द में रोने का कोई फायदा नहीं है, दर्द में चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि उससे वो सिर्फ आप पर बार बार अटैक ही करेगा. If when you are walking round your yard you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress. Caress means a hug. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर कभी अपने यार्ड में, यार्ड क्या होता है, घर का जो लॉन होता है, ओपन एरिया, अगर कभी अपने घर के यार्ड में आप घूम रहे हैं और तब वहां पर आप किसी क्रीचर से मिलते हैं जो कि आपको बहुत जोर से हग करता है, तो आप कह सकते हैं कि वो एक भालू है. अगर आपको शक है कि पता नहीं है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि वो भालू है या नहीं, तो वेट कीजिए, वो आपको एक बार और जोर से हग करेगा और फिर आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो भालू ही है. Though to distinguish beasts of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. तो हमने सब सुना है ना, क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि नकली के आंसू. तो यहाँ पे नोविस का मतलब है एन अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड नॉन प्लस मीन्स टू गेट कंफ्यूज.
तो कह रहे हैं कि जब भी आपको बीस्ट ऑफ प्रे को डिस्टिंग्विश यानी कि आइडेंटिफाई करना होता है तो कई बार आपको क्रोकोडाइल और हाइना में कंफ्यूजन हो सकती है, स्पेशली कोई जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं। लेकिन एक ऐसा आइडेंटिफिकेशन है कि जो हाइनास हैं वो हर वक्त स्माइल करते रहते हैं और जो क्रोकोडाइल्स हैं वो हर वक्त वीप यानी कि रोते रहते हैं। सो ये वो आइडेंटिफिकेशंस हैं जिससे एक इनएक्सपीरियंस व्यक्ति भी इनको आइडेंटिफाई कर सकता है। Next is the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. तो यहाँ पे वो क्या कहती हैं कि जो चिमिलियन होती है वो एक बहुत ही छोटी सी क्रीचर है और वो दिखने में लिजर्ड जैसी होती है, उसके कोई कान नहीं है, कोई पंख नहीं है। और अगर आप किसी पेड़ को देख रहे हैं और आपको उस पर कुछ भी नहीं दिख रहा तो आप एक चिमिलियन को देख रहे हैं। क्यों? चिमिलियंस की एक क्वालिटी होती है कि वो अपनी बॉडी का कलर अपने बैकग्राउंड जहां पर वो बैठी हैं उसी कलर से मैच कर लेती हैं। तो अगर वो एक पेड़ की ब्रांच पर बैठी है जो कि ब्राउन कलर की है तो वो चिमिलियन अपनी बॉडी का कलर भी ब्राउन कर लेगी, तो आपको वो चिमिलियन दिखेगी नहीं। इसी वजह से वो कह रही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं दिखता पेड़ पर तो आप चिमिलियन को देख रहे हैं। एक तरफ वो कह रही है आपको कुछ भी नहीं दिखता और दूसरी तरफ वो कह रही है कि आप एक चिमिलियन को देख रहे हैं। ये तो थी हमारी पोएम। अब डिस्कस करते हैं इसमें यूज किए हुए फिगर्स ऑफ स्पीच। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी स्टैंजास की राइम स्कीम है ए बी सी सी। Chance and advance are rhyming A, east and beast are rhyming B, and then dine and lion are rhyming C. A B C C. यही राइम स्कीम आपको सभी स्टैंजास में देखने को मिलेगी। Then in many places you will see enjambment also. Enjambment is when the same sentence continues to the next line and there is no use of any punctuation mark at the end of the line. That is called enjambment. जैसे कि if ever you should go by chance to jungles in the east. So this is one sentence broken into two lines and chance के end में कोई punctuation mark नहीं है। यहाँ पे हमें alliteration देखने को मिलती है roaming round. The sound is repeating at the start of these two words. So alliteration is जब कोई भी consonant sound दो consecutive words की starting में repeat होता है। Then there is oxymoron. नोबल वाइल्ड बीस्ट, तो वो कह रही है कि वो जो वाइल्ड बीस्ट है वो नोबल भी है। नाउ वाइल्ड बीस्ट कैन नॉट बी नोबल। दिस इज द यूज ऑफ ऑपोजिंग वर्ड्स, मीन्स आप एक ऐसा एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं उस नाउन के साथ जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन। देन पोएम में काफी जगहों पर इन्वर्जन भी यूज हुआ है। इन्वर्जन का पोएटिक डिवाइस ये होता है when the order of the sentence is changed, means आप जो words हैं उन्हें एक अलग order में set करते हैं to create meter and musical effect। देखिए whose hide with spots is peppered, so यहाँ पर भी sentence में जो words का order है वो change किया गया है। this is inversion। then यहाँ पर एक poetic license use किया गया है to change the spellings। देखिए यहाँ पे उन्होंने स्पेलिंग्स क्या लिखे हैं, लेप एंड लेप, अदरवाइज इट इज लीप। तो यहाँ पे उन्होंने स्पेलिंग्स चेंज किए हैं पोएम में म्यूजिकल इफेक्ट डालने के लिए, लिरिकल इफेक्ट डालने के लिए। दिस इज कॉल्ड पोएटिक लाइसेंस। नाउ हियर वी गेट टू सी अ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मीन्स दैट यू आर यूजिंग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स। एक तरफ आप कह रहे हो देयर इज नथिंग ऑन द ट्री एंड देन आप कह रहे हो दैट यू आर सीइंग अ चिमिलियन। जब कुछ भी नहीं है पेड़ पर तो आप चिमिलियन को कैसे देख रहे हो। सो एक पैराडॉक्स यहाँ पर क्रिएट किया गया है। और पोएम में बहुत जगहों पर हाइपरबोल भी यूज हुआ है। हाइपरबोल मीन्स द यूज ऑफ एग्जैजरेशन, बहुत बढ़ा चढ़ाकर जब आप बोलते हैं, जैसे कि वो कहती हैं दैट जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू। सो दिस इज एग्जैजरेशन कि भाई आप इतना ध्यान रखेंगे कि वो जानवर आपको खा लेता है तब आप कहोगे कि वो बंगाल टाइगर है। सो दिस इज हाइपरबोल। Now we see the questions from this chapter. The first one is, why does the poet say that a bear's hug may confuse a novice? Because आपको तो ऐसा लगेगा कि कोई बियर है या वो कोई व्यक्ति है जो कि आपको हग कर रहा है, मीन्स वो आपको प्यार कर रहा है।
आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपको मारना चाहता है। इसलिए जो इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है वो कंफ्यूज हो सकता है, वो समझेगा कि ये हग उसको प्यार करने के लिए, ना कि उसे मारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट अ बियर हग इज? इट्स अ फ्रेंडली एंड स्ट्रॉन्ग हग सच एज बियर्स आर थॉट टू गिव एज दे अटैक यू। अगेन hyenas are thought to laugh and crocodiles to weep crocodile tears as they swallow their victims. Are there similar expressions and popular ideas about wild animals in your own language? तो हम यहाँ पर कुछ expressions दे सकते हैं, जैसे कि cat nap. cat nap क्या होती है? short sleep. फिर हम कह सकते हैं टू क्राई वुल्फ. क्राई वुल्फ का मतलब होता है अ फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म. एंड देन क्रोकोडाइल टीयर मीन्स इमिटेशन और फॉल्स टीयर्स मीन्स ऐसे ही नकली का रोना. एंड देन पार्टी एनिमल. पार्टी एनिमल इज सच अ पर्सन हु लव्स टू पार्टी. सो ये एनिमल्स से इंस्पायर्ड कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जो कि हम इंग्लिश में यूज करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल नॉलेज इज यूजफुल बट नॉट ऑल नॉलेज इज वर्थ द कॉस्ट. सो ऑब्वियसली इस पोएम में भी वो जो नॉलेज हमें दे रही हैं वो शायद यूजफुल हो, लेकिन इट इज नॉट वर्थ द कॉस्ट, क्योंकि अपनी जान ही जब हम गंवा देंगे तब ये पता करना कि वो जानवर कौन सा जानवर है, इस चीज का कोई यूज नहीं रह जाता. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर एंड देन यू विल गिव द डिफरेंट एग्जांपल्स फ्रॉम द पोएम के किस तरह से किस जानवर को पहचानने के लिए उन्होंने ऐसे आइडेंटिफिकेशन बताए हैं जिससे कि हम अपनी जान ही गंवा देंगे. इसी वजह से वो नॉलेज लेना बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है. If he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. Comment on the irony of the quote from the poem How to Tell Wild Animals. तो यहाँ पे irony क्या है? That we will identify the lion when we are dying. This is of no use when we are dead. So this is a futile identification. She says that if you are dying, then you can say that it is the Asian lion. But obviously when a person is dying, to whom will he tell that he saw the Asian lion, right? So this is the irony. Next question. Hyperbole is a literary device used when poet exaggerates an image to make it comical. Two instances of hyperbole used in this poem. Now you have to quote from the poem. You can say, just notice if he eats you. This is for the Bengal tiger. And then she says, who hugs you very, very hard. So these two quotes, so these two expressions from the poem are hyperbole. They are very exaggerated. Next one is paradox. If there is nothing on the tree, it's the chameleon you see. Briefly explain the paradox. Paradox ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. Contradictory statements बोल रही हैं, because she says if there is nothing on the tree, tree पे कुछ है ही नहीं है तो हम कैसे कुछ देख रहे हैं. Then she says it's the chameleon you see. So this is a paradox. She is using contradictory statements. Then next question है, Caroline Wells takes liberties with language and employs humor to describe the wild animals. Give some examples of humorous descriptions in the poem. ऐसे descriptions जिससे हमें हंसी आ जाती है, जैसे कि वो कहती हैं a noble wild beast greets you, यानी कि आपका स्वागत करता है, वो भी noble wild beast. This is humorous. फिर वो कहती हैं if he roars at you as you are dying. इससे भी हमें हंसी आ जाती है कि भाई एक तरफ तो हम मर रहे हैं और हम ये देखेंगे कि भाई वो हम पर रोर कर रहा है तो वो एशियन लायन है. So this is also humorous. Then we move to the next question. Imagine the poet meets Mijbil the otter. तो वो किस तरह से अपनी पोएम में मिजबिल दी ऑटर को डिस्क्राइब करेगी कि उसको पहचानने की क्या आइडेंटिफिकेशन है. तो वो क्या लिख सकती है? अब हमने मिजबिल दी ऑटर में ये देखा था ना कि वो ऑटर है वो मिट्टी से भरा हुआ था, एंड एक चीज हमने देखी थी उसे पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता था. तो हम ये दो क्वालिटीज इंक्लूड करके एक सॉर्ट ऑफ पोएटिक चीज, एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने लिखा है, इफ यू सी a heap of
earth moving. It could be an otter smeared in mud, and if it splashes water on you, then you can be sure that there is an otter before you. So इस तरह से हम ये एक पोएटिक स्टैंजा क्रिएट कर सकते हैं. कैसे आप एक ऑटर को आइडेंटिफाई करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Write a letter to the poet detailing your favorite aspects of the poem and the ones that you did not like. Include a request about which animal you'd like her to exclusively compose a poem on and give reasons for this. So हमने कैरोलाइन वेल्स को लेटर लिखना है, उसमें बताना है कि आपको इस पोएम में क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा, और आप क्या चाहते हैं कि वो एक किसी पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर एक फुल फ्लेजेड पोएम बनाएं और क्यों. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें आपका ह्यूमर तो अच्छा लगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेटेड था. जैसे कि आपने कहा कि अगर हम मर रहे हैं तो हम उस एनिमल को पहचान सकते हैं. सो दैट इज नॉट डूएबल. सो थोड़ा सा टोन डाउन होनी चाहिए आपकी पोएम. और जिस तरह से आपने चिमिलियन या क्रोकोडाइल या हाइना को आइडेंटिफाई करने के वेज बताए, वो तो फिर भी ठीक थे, बट लायन, टाइगर, बेयर वो थोड़े ज्यादा ही एग्जैजरेटेड थे. और फिर हम उन्हें ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, यू कैन बी क्रिएटिव विद दिस. यू कैन सजेस्ट हर दैट प्लीज मेक अ फुल फ्लेजेड पोएम ऑन sea animals like whales or sharks or octopus because they are very mysterious. We don't know much about them, so your information will be highly appreciable. These are unexplored and mysterious, so then you will tell us about their characteristics and their qualities through your poem. It will be highly informational also and beneficial for everyone, and everyone will obviously like. सो इस तरह से आप भी क्रिएटिविटी यूज करके ऐसे ही कोई भी एनिमल सोच सकते हैं, और आपने एक लेटर के फॉर्मेट में ये आंसर को अटेम्प्ट करना है. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस सेशन, एंड मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहूंगी दैट योर बोर्ड एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर. Pre-boards are about to start, so please start preparing English also, and please take use of our courses and score well in the exam. Thank you for watching this video.